جیسا کہ آپ سب نے کل دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا بلکہ دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے. خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا، اس کے بعد جب رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا، اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا، دہشت گردوں کو لایا جائے گا. یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا. اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا تو مراد سعید جو ہمارا بڑا ہے، اس کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے احتجاج کیے. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر بند کمروں والے پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ دوبارہ آ رہے ہیں. لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. جب پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو، ان کو روکو. لیکن ان کو نہیں روکا گیا. جب بازاروں سے ہمارے گھروں تک پہنچے اور بندوق کی نوک پر رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں تک پہنچے اور ہم سے بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے. رات کو وہ بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے، صبح کو سیکیورٹی فورسز آتے تھے مار دیتے تھے. اگر کھلاتے کہا ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے. میرے گھر تک پہنچنے کے لیے 50 سے زیادہ چیک پوسٹوں پر میرے سیکیورٹی فورسز کھڑے ہیں. وہ بارڈر بھی کراس کرتے ہیں، آپ کے سیکیورٹی چیک پوسٹ بھی کراس کرتے ہیں. جب میرے گھر تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ ہمیں اٹھاتے ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے. اور پوری دنیا کو خبر ہو کہ اس طرح ہی ہوتا ہے. دوسری بات، جب ہمارے گھروں تک پہنچے تو ملٹری آپریشن کی تیاری کے لیے ہمارے گھروں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے. ہمارے گھروں پر جیٹ طیاروں سے بمباریاں شروع ہوئی. آپ سب گواہ ہیں کہ ایک ایک ڈرون اٹیک میں تیرا میں میرے قوم کے 21 لوگ شہید ہوئے. شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن جب 21 لوگ بے گناہ شہید ہوتے ہیں تو وہ میڈیا جو عسکری جرگے کو لائیو دکھاتے ہیں، وہی میڈیا ہمارے ان 14 معصوم لوگوں کو
दहशत गर्द बनाकर पेश करते हैं। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने मेरा ये पूरे खैबर का जरगा गवाही देता है। हाथ उठाकर बताएं कि वो 21 लोग बेगुनाह थे कि नहीं थे। वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन अटैक के जरिए हमारे लोगों को शहीद किया गया। जेट तैयारों से बमबारी पर हमारे लोगों को शहीद किया गया। मासूम बच्ची को शहीद किया गया। जब वो मासूम बच्ची मेरे तिरा के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए रखी, इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे लोगों पर गोलियां चलाई। 5 लोग मेरे शहीद हुए उसमें। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब मिलिट्री ऑपरेशन को उसके लिए राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था। मेरे खैबर के गयूर कबाइलियों, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस बात का इल्म था कि इन्होंने कुछ करना है। इसलिए मैंने इनको आगाह किया कि अगर आज इस वक्त आप मुझे या मेरी हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खराब करने के लिए ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो याद रखना कि वहां बर्फबारी पड़ने वाली है। आप वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक बात मेरी नहीं सुनी, उन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ये बयानिया बनाया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। फिर इन्होंने ये बयानिया बनाया कि ये स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। जब दोनों बयानियों में मेरे गयूर पख्तूनों ने और पाकिस्तानियों ने इनको शिकस्त दी तो इन्होंने इस ऑपरेशन का सहारा लिया मुझे खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। बार बार कहने के बावजूद जब मेरे लोगों को मजबूर किया गया, तिरा के अवाम को मजबूर किया गया, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और मेरे लोग वहां पहाड़ों में सख्त बर्फबारी में फंसे और पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म और जबर मेरे तिरा के अवाम के साथ हो रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं। लोगों को हमारा प्लान एक्सपोज हो रहा है। तो इन्होंने एक कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज निकाला। उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि तिरा के अवाम वो वॉलंटियरली यानी रज़ाकाराना तौर पर तिरा से निकल रहे हैं। जब मुझे पता चला, मैंने उस वक्त ऐलान किया कि तिरा के अवाम को रज़ाकाराना तौर पर नहीं, जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया है। और वो मैं आखिर में आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि किसने आपको निकाला था। मैंने उनको कहा कि 24 रुकनी कमेटी में आपका कोर कमांडर, आपका आईजीएफसी इस सारे मरहले में शामिल था। उसकी सरबराही में यह कमेटी बनाई गई थी। वो इस सारे प्रोसेस से बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन या आपका प्रेस रिलीज अपने ही आईजीएफसी और अपने ही कोर कमांडर पर अदम एतमाद का सबूत है। आप उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को ना कोर कमांडर पर कोई एतमाद करेगा, ना आईजीएफसी पर कोई एतमाद करेगा, ना इनके साथ कल को कोई जरगे में बैठेगा, क्योंकि आप इनकी हैसियत को खत्म कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए। इस प्रेस रिलीज को वापस भी लिया जाए और माफी भी मांगी जाए।
लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। अगले दिन 3 और कारटूनों को बिठाया गया, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरे गैरतमंद कबाइलों, एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। हम पर पहले भी ये मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं। हम एक दफा पहले भी अपने घरों से बेदखल किए गए थे। एक दफा पहले भी हमारे घर उजड़े थे, हमारे उजरे उजड़े थे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई थी, हमारे लोग दर बदर हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अमन आया। 2018 में, 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था। लेकिन फिर बंद कमरों में फैसला किया गया कि इनको दोबारा बात करते हैं। एक दफा फिर जो है हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। एक दफा फिर इन्होंने हमें बेदखल किया अपने घरों से। एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है, ये हमारे साथ मजाक है। और इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने साथ मजाक होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा आपके हर उस पॉलिसी के खिलाफ मैं भी खड़ा हूंगा, मेरी अवाम भी खड़ी होगी, और आपके आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथी नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी भी बढ़ा रही है और दहशतगर्दों को भी बढ़ा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहां इस जरगे में इकट्ठे हुए हैं इनके झूठे प्रोपेगंडों को तोड़ने के लिए। बात की जाती है कि 4 अरब रुपए आपने अपने लोगों के लिए क्यों रिलीज किए। इससे पहले जो ऑपरेशन हुए, मेरे कबालियों, आपके साथ वादा किया गया था कि जिनके घर तबाह होंगे उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 4 लाख रुपए वफाकी हुकूमत ने आपको दिए हैं? दिए हैं? नहीं दिए। ये अपनी बीवियों के लिए, ये अपनी बेटियों के लिए 4-4 लाख रुपए का एक पर्स खरीदते हैं, एक सैंडल खरीदते हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून, वो अपनी जिंदगी की तमाम जमा रकम अपने घर पर लगाता है, अपने लिए घर बनाता है, अपने लिए छत बनाता है, और आप उसके लिए बेगैरतों की तरह 4 लाख रुपए देते हैं। शर्म आनी चाहिए बेगैरतों। चार लाख रुपए भी अभी तक नहीं दिए। इस तरह हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान के आईडीपीज जो बकाखेल कैंप में थे, उनसे वादा किया गया था कि वो उनको मंथली पैसे देंगे। 7 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत उनको दे चुकी है, वफाकी हुकूमत 1 रुपए भी नहीं दे रही। जो हमारे आईडीपीज के बकाया है वफाकी हुकूमत पर, वो 52 अरब रुपए है। जो पूरे सूबे के बकाया है वो 4758 अरब रुपए बकाया है वफाक हमारा। तो जब आप मेरे